You okay? So up to this point, we have studied about the intrinsic and extrinsic semiconductors, intrinsic and about the intrinsic and extrinsic semiconductor. If any point of time you find that okay, there is a doubt, you can ask and okay, interrupt me at any point of time. In this last time, we have discussed the two important phenomena, that is your mass action law, and it tells you about that the number of the free carriers, okay, whether they are electrons or the proton, if their product is always equal to Ni square, and this Ni is your intrinsic charge carrier concentration. Okay, so this is your intrinsic charge carrier concentration. Apart from this, last time we have done the charge neutrality equation. Okay. That says that the total positive charge is equal to total negative charge. So in this, I told you about Nd plus P is equal to Na plus N. Okay. So this Nd is your donor concentration. Donor is the concentration of atoms, means number of the donor atoms per unit volume. Na is your number of the acceptor atoms per unit volume. Okay. So this entails total positive charge, and this entails your total negative charge. So this will always be equal. So from this two formula, we can solve almost all type of numericals. If he asks you about like determine the free electron and the hole concentration. Okay. So last time we done the two numericals. So also we will do two more numericals. Then we'll wrap up this topic. Okay. So the numerical is, consider a semiconductor. Okay. Just bring your copy and pen and solve the question with me. Okay. So I'll ask from you, Rupa, and the people who joined our class. Okay. Consider a semiconductor doped with a donor density of, okay. So he has given you the donor density. So generally this is because number of charges per unit volume. So we define the as the density. Okay, some kind of density. Nd and no acceptor. Okay, no acceptors. So means that Na concentration is equal to 0. No acceptors. Let Nie is equal to, let Ni is equal to 10 raised to power 10. Okay, per centimeter cube, means these are the number of the intrinsic charge carriers, whether they are electrons or the protons or the holes. Okay, so this 10 raised to power 10 denotes that amount. Okay, for the semiconductor, so just relate it to the two formulas given above. Okay, conductor. Next is determine the free electrons. Determine the free electrons and holes. Okay, densities. So he's asking about that the number of the holes, the number of free electrons, the hole density. Densities, sorry, this will be densities because this is plural. Okay, so this will be your densities in equilibrium. And what additional information given? If if Nd is part A, 10 is to power 13, okay, 10 is to power 12 per centimeter cube, and the part B, if the donor concentration is 10 raised to power 18 per centimeter.
So he is asking about the number of the free electrons in the holes density in the equilibrium. Okay. So from this formula, okay, from the equation number 2, okay, in the equation number 2, so let us consider this is equation number 1 and this is equation number 2. So since Na equal to 0, okay, Na equal to 0, there is no acceptor density here. So we can write the formula number 2 as Nd plus P is equal to 0 plus N, right? This would be equal to N. Okay. Another formula that you know, okay, so what are the information given to you? Okay. Nd is given to you, right? In the part A, Nd is 10 raised to power 12. P and N, it's not given, right? Okay, but how to find out the P and N? P and N I can find out from the formula number 1, that is equal to Ni square. Okay, so this would be around what? If you are putting P equal to P or N, anything you can take. Okay, so if you want to take the P, so this would be equal to Ni square divided by N. Okay, and you put into this equation number 3. Okay, put into this equation number 3. So what you will be getting, what? Nd plus Ni square by N is equal to N. So voila, it becomes your quadratic equation. Okay, so N square minus, okay, so I am just solving this quadratic equation. So plus minus Ni square. Okay, just I multiplying the cross multiplication I have done. So once you get this, I think you already know this formula. Okay, the quadratic equation root are, if this is given to you, ax plus bx is equal to c. So its roots are, okay, x1, x2 is equal to what? x1 comma x2 is equal to minus b plus minus b square minus 4ac, right? Okay, I already know this formula, how to find out the root. Okay, divided by 2a. Okay, 2a. Here you just need to find out what are these coefficient. Okay, so this coefficient is here 1. Okay, and this b is your minus Nd. Okay, and c is your minus Ni square. So you can find out the N value. So N value would be equal to what? Minus b, matlab minus minus Nd, it would be equal to Nd plus, okay, plus or minus. Okay, हम लोग देखेंगे कि which we need to retain, either the negative or the positive. Okay, so this would be b square, means that Nd square, and this would be equal to minus 4ac, means minus 4 into a is 1, c is minus Ni square, so it would be equal to what? Minus minus plus 4 into Ni square. Okay, divided by 2a. a क्या है तुम्हारे पास? 1 है. Okay, a क्या है तुम्हारे पास? It is equal to 1. Okay. Just solving this equation will give you the N value. Okay, once you get the N value, you can get the P value. Okay, once you get the N value, you will get the P value. So मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, you try to solve it at your home. Okay, so this would be, N value would be for the part A, it would be around what? 1.001. Okay, 1.001 into 10 raised to power something, I think 12 per centimeter. And in this, you would find that P value is nothing but this is equal to 9.999 into 10 raised to power 7. Okay, 10 raised to power 7. So this is the value you will get. And the B also, B part is also easy. Just put the Nd value directly into this formula. Okay, so you'll be getting what? B value is equal to, in this, 10 raised to power 18 and 10 raised to power 2. Okay, so इसमें क्या मिलेगा तुम लोगों को? 10 raised to power 18 per centimeter cube, and P you would find out this would be equal to 10 raised to power 2 per centimeter. Okay, so just try to solve this. So this was one of the numerical, okay, from the NET exam. Okay, sir. Yeah. Okay, so I'm hoping that इसमें किसी को कोई problem है? No, sir. No? Okay, okay. तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, then we'll end this topic. Okay. So next is a block. Just try to solve this. Bring your calculator with you. Okay. IIT JEE में तो calculator allowed है, but if this is an online exam, then you need to do the
use the online calculator. Okay, so physical calculator is not allowed in the online exam, the IIT JAM. So a block of silicon is doped with, okay, doping means adding impurity, doped with a donor atom density of of Nd is equal to, this is given as 3 raised into 10 raised to power 14, okay, atoms per centimeter. So this donor density will always be given you in terms of atoms per centimeter cube. Okay, so because each atom gives you 1 electron, so you can relate this Nd to the number of the electrons that are given by each donor atom. Within इसने दे दिया है हम लोग with an acceptor. So it has given you this also, Na value also, density of Na is equal to 0.5 into 10 raised to power 14. Okay, 0.5 into 10 raised to. So you'll be thinking about, sir, what about the 0.5? Atoms cannot be in terms of the non-integer. Okay, you can think about it, but they have given what we can do, right? Atom should be integer value, number of the atoms. Okay. Determine the resultant densities of free charges. Okay. Density of free charges. So again, you need to use the two formula. One is your this one, Nd plus P is equal to Na. Okay, I'm hoping that all of you you can solve this. Second is your Np is equal to Ni square. Np is equal to Ni square. Okay, this is very important. देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में तुम लोग को Ni नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बट उसने सिलिकॉन का दे दिया है. तो सिलिकॉन का जनरली जो Ni वैल्यू होता है, ओके, वो हम लोग इसमें इसके बाद डिस्कस करेंगे. इसका होता है अराउंड 1.5 into 10 raised to power 10. ओके, या तो फर्स्ट पेज पे वो तुम लोगों को दे देगा कांस्टेंट बता के सभी के सभी क्या क्या कांस्टेंट्स है, ठीक, पर सेंटीमीटर. ये होती है टिपिकल वैल्यू ऑफ द Ni, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ सिलिकॉन. Okay, if nothing is given, you can use this. Okay, so Nd plus P means 3 into 10 raised to power 14. Okay, sorry, I will again try to solve it by that. Okay, by that formula, so it would be what? It would be here Nd plus P, okay, is equal to Na. So this time I will take the n would be equal to what? Ni square divided by P. Okay, so at any point of time you find that, okay, sir, मुझे समझ में नहीं आ रहा, you can ask. So this would be equal to what? Nd into P. Okay, if I'm doing the cross multiplication with P, so P square is equal to Na plus Ni square into P. ये हो गया तुम्हारे पास. Okay, so once you got this, you got P square plus Nd minus Na into P. Okay, so I will take this side, minus Ni square is equal to 0. So again, this is quadratic equation. So this is A is this one, A is equal to 1 here. So B is this one coefficient, right? Nd minus Na, and this is your C, which is equal to minus Na square. Okay. Okay. So I'm hoping that you can solve this or not. N value would be equal to minus B, okay, plus minus B square minus 4AC. Okay, this is how you find out the root of a quadratic equation. Okay, 2 into A. तो A भी तुम लोगों को गिवन है, ओके, 1 है, ठीक है. B वैल्यू भी गिवन है, B वैल्यू का Nd और Na दोनों गिवन है, राइट. ऊपर क्या गिवन है दोनों? 3 into 10 raised to power 14, और ये कितना? 0.5. So Nd minus Na would be equal to 2.5. Okay, so I am writing it here, A equal to 1
B equal to nd minus na, मतलब 3 minus 0.5, that would be equal to 2.5 into 10 raised to power 14 per centimeter cube. Okay, and C value is equal to what? This is 1.5 का square. Okay, so that would be around 2.25 into 10 raised to power 20. Okay, negative sign would be there, so this is minus ni square. Okay, so you can square this ni square, you will be getting what? 15 का square क्या होता है? 2.25, 25 होता है क्योंकि 0.5 है, तो that's why I taken that 2.25. Okay, so okay, you can solve this, Rupa. Yes, sir. हाँ, ठीक है। तो इसमें तुम लोग ये देखना कि तुम्हारी वैल्यू जो आएगी, ओके, अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी, दो रूट्स आएंगे। अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी, डिस्कार्ड दैट। अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो जस्ट रिटेन दैट वैल्यू। ओके, जस्ट रिटेन दैट वैल्यू, and I am just writing its answer. Just try to find out, solve this at your home. Okay, so the answer for this is around what? It is 2.5 into 10 raised to power 14. Okay, electrons per centimeter cube. So this you will be getting 2.5 into 10 raised to power 14. Okay, so this is the answer. So I am hoping that you will be able to do it. Okay, so let us start the next part. Electrical properties of germanium and silicon. Okay, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कंडक्टिविटी, मोबिलिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज. ओके, so the next topic is electric properties of, okay, so some of the empirical formula also we will discuss here. Electrical properties of germanium and silicon. Okay, so first let me tell you, because germanium and silicon, they both are your semiconductor material. Okay, these both are your semiconductor material. इसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया था? मेटल्स में भी डिस्कस किया था. तो मेटल्स में हमने क्या कहा था? मेटल्स में जो करंट होता है दैट इज इट्स यूनिपोलर. ओके, यूनिपोलर का क्या मीनिंग है? द करंट इज ओनली ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स. ओके, करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स ओनली. But in the semiconductors, the current will always be because of the two charge carrier, that is your electron and hole. Okay, current is bipolar. Okay, this is bipolar, and this will be due to the holes as well as electrons. Okay, so मेटल्स के केस में क्या होता है? जो कंडक्टिविटी होती है दैट इज इक्वल टू आई, हमने डिस्कस किया था. दिस इज जस्ट इक्वल टू जे इज इक्वल टू व्हाट? जे वुड बी इक्वल टू एन म्यू एन इनटू वीडी. ओके, एन म्यू एन इनटू वीडी. सो दिस इज द फार्मूला दैट वी हैव डिस्कस्ड लास्ट टाइम. ओके, और इफ यू वांट टू कन्वर्ट दैट इनटू द सिग्मा, सो सिग्मा वुड बी इक्वल टू व्हाट? So if you are putting this omega Vd is equal to mobility into electric field that we have done last time. So this J would be equal to what? N into mu n. Okay, इसको हमने properly derive किया था last time, है ना? Mu into E. So this mu n. Okay, so this not be this will be the your Qn. Here it would be your Qn. Here this would be your Qn. N Qn. Q into Vd. Okay, so when you are opening this formula, so because the drift velocity is equal to what? Mobility into electric field, so you will get what? NQ into mu into E. Okay, अगर तुम लोगों को J और इलेक्ट्रिक ये डेंसिटी है, J is your current density is directly proportional to electric field, so J is always equal to sigma into E. Okay, अगर तुम लोग इसको इसके साथ कंपैरिजन करोगे, so this would be equal to what? NQ म्यू इंटू ई. ओके, तो तुम लोगों को यहाँ पे सिग्मा मिल जाएगा, मतलब दिस इज योर कंडक्टिविटी. ओके, इसको हम लोग डिस्कस किया था लास्ट टाइम. तो मेटल के केस में क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट? एन क्यू इंटू वी ऑफ पी. ओके, और इसको हम लोग लिख सकते हैं एन क्यू इंटू म्यू एन इंटू ई
और इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा इंटू ई. ओके, सो दिस विल बी द केस ऑफ द metals. Okay, this will be the case of the metal. So nq into mu n. Okay, so इसमें हमेशा याद रखना. So what are these different terms? Vd is your drift velocity, and mu n is equal to its mobility of holes. So the mobility of electrons, because this is metal, mobility of electrons. Then q, it is charge on an electron. तो रूपा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. राइट, यू आर राइट. ओके ओके, मोबिलिटी का भी हम लोग देखेंगे कि क्योंकि डिपेंड करता है कि किस तरह का मटेरियल. सेमीकंडक्टर में तुम लोग देखोगे कि मोबिलिटी ऑफ होल्स इज ग्रेटर और द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट. ओके, एंड दिस E is your electric field. Okay, E is your electric field. Always try to remember all these units because these units are very important. Either this will be given to you in the volt per centimeter sorry, or this will be given you in the volt per meter or the volt per centimeter. The drift velocity, it would be this unit would be centimeter square plus divided by volt second. Drift velocity है तो velocity किसमें होती है? सेंटीमीटर पर सेकंड होगा यहाँ पे. ओके, तो मैं लास्ट टाइम बताया था इट वोंट बी द मीटर पर सेकंड, इट वुड बी द सेंटीमीटर पर सेकंड. ओके, बिकॉज ऑफ द डायमेंशंस आर वेरी स्मॉल. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर मेटल. ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर मेटल. अगर मेटल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसे कंडक्टिविटी पूछ ले, NQ दे के, मतलब तुम लोगों को डेंसिटी दे दिया, नंबर ऑफ द फ्री चार्ज कैरियर दे दिया, चार्ज दे दिया, और मोबिलिटी की वैल्यू दे दी और E वैल्यू दे दी. सो यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस फार्मूला फॉर द मेटल. सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या होता है? सेमीकंडक्टर के केस में वी नीड टू टेक द बोथ. ओके, सो दिस वुड बी इक्वल टू NQ mu n into E. ओके, प्लस NQ. ओके, तो मैंने दोनों का जो चार्ज है, क्योंकि चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड होल आर सेम बट द मास इज डिफरेंट. ओके, सो दिस इज योर, यू कैन टेक म्यू पी आल्सो भी ले सकते हो, तो बुक में म्यू एच भी होता है. ठीक है. ओके, सो दिस वुड बी योर the current density. So J is your current density and it is always equal to what? It is always equal to current per unit area. Okay, current per unit area. So इसकी यूनिट्स किसमें होंगी? एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर या एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में. ओके, सो दिस इज current density. Okay, so once you got this, okay, you can find out the conductivity. Conductivity is nothing but sigma is equal to NQ into mu n. Okay, plus NQ into mu p. और यहाँ पे देखो दोनों का ये जो चार्ज ले रखा है मैंने, ये सेम है. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है. दैट इज इक्वल टू, बट दिस मोबिलिटी विल होल्स इलेक्ट्रॉन्स इज जनरली ग्रेटर देन द होल्स बिकॉज ऑफ द मास डिफरेंस. राइट. ओके, बिकॉज दे आर हैवी. ओके, तो तुम लोगों को पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन का कितना मास होता है, इलेक्ट्रॉन का कितना मास होता है, और प्रोटॉन का, जिसको हम लोग होल के इक्विवेलेंट मानते हैं यहाँ पे. So can anyone tell me what is the, it would be 9.27 or what? Anyone? 9 point? Into 10 to the power minus 31 kg. 21 kg. And what about this one? Holes or the proton? So 31, 10 to the power minus 31. Minus 31, yeah. Okay, so this would be around minus 27, ना? कितना होगा इसका? 1.67 into 10 to the power minus 27. Okay, 27. So you can see that this hole is heavier by 10 raised to power minus 4 amount. Okay. So because of this mass is greater of the hole, so hole mobility would be, क्योंकि mobility क्या define करती है तुम्हारे पास? Mobility define करती है तुम कितनी velocity से तुम लोग drift कर रहे हो electric field में. ठीक है, क्योंकि mobility का जो formula है, that mobility comes from what? Mainly the mobility is related by this part, that mobility is always equal to what? It is drift velocity divided by electric field. Okay. Okay, हम लोग इसका भी कुछ डिस्कस करेंगे क्योंकि डिफरेंट टेम्परेचर पे ये भी चेंज हो जाती है. ठीक है, बट मोस्टली विल फॉलो दैट द मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. कि तुम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हो तो कितना वेलोसिटी बढ़ रहा है उसका. ठीक है. ओके,
So this is all about this one. Now let us go towards the next part, because we need to discuss the electrical property, and we will discuss each one that are relevant for your syllabus as well as for your exam. Okay. Second part I need to discuss is the intrinsic concentration. Okay. Intrinsic concentration. So most of the formula that we deal in the electronics, okay, are your empirical formulas. Okay. तो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कितना करंट बढ़ा, कितना इसमें चार्जेस है, राइट? ओके. So this intrinsic concentration, so this is defined as the Ni, जो हमने डिस्कस किया था इसमें, N into P is equal to Ni square, right? Okay. तो इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर्स थे उसमें कितना था? Ni was equal to N equal to P. Okay. और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का कैसे निकालोगे? That what will be equal to what? Ni square is equal to N into P. Okay. और इसमें क्या होगा? Nd plus P and is equal to Na plus N. Okay. So remember this thing. Now the intrinsic empirically is defined as with the temperature. Okay. Ni is equal to what? Ni square is equal to A naught into T raised to power. Okay. So this is empirical formula. So there is no derivation of it. Energy gap at 0 degree Kelvin divided by the KT. Okay. इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगा हम लोगों को. ठीक. ओके. जनरली आईआईटी जेम में तो नहीं आता इसका क्वेश्चन, लेकिन आईआईटी नेट में इसका आया हुआ है कि इंट्रिंसिक जो कैरियर कंसंट्रेशन है, हाउ दिस टूज आर रिलेटेड. ओके. तो यहाँ पे देखोगे तुम, इंट्रिंसिक जो कैरियर कंसंट्रेशन है, इट इज रिलेटेड विद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T रेज़ टू पावर 3. ओके. तो ये क्या क्या चीजें हैं? T है तुम्हारे पास टेम्परेचर. ओके. So T is your temperature. So this will be here it will be in the degree Kelvin. Okay. Here we will define this in the degree Kelvin. And A naught is your, it depends upon the specimen. Okay. So generally it is the specimen constant, we say that. Okay. Depends upon the which material you are using. This is independent of temperature. Next is your Boltzmann constant, that is K. And I think you have studied about this in the quantum mechanics also. So this will be given in the terms of if you are this electron volt per degree Kelvin or joule per degree Kelvin. Okay. So this is around 8.62 into 10 raised to power minus 5. Okay. इसको confirm कर लेना आप लोग. ये होता है इसका. और जूल पर डिग्री केल्विन में है तो दिस इज इक्वल टू 1.36 into 10 raised to power I think 39 or okay, just confirm this. So this is your Boltzmann constant K. Okay. इसके अलावा जो Eg0 है, that is nothing, that is your energy gap. Okay. Energy gap at 0 degree Kelvin. At 0 degree Kelvin. Okay. At 0 degree Kelvin. तो ये एनर्जी गैप कौन सा है? दिस इज द एनर्जी गैप बिटवीन द कंडक्शन इन द वैलेंस बैंड. ओके. सो दिस वाज योर वैलेंस बैंड एंड दिस वाज योर कंडक्शन बैंड. सो दिस इज दिस कंडक्शन बैंड एंड दिस डिफरेंस बिटवीन दिस वन, दिस इज योर एनर्जी गैप. ओके. अगर मैं बात करता हूं कि 0 डिग्री केल्विन पे, तुम सभी को पता होगा कि 0 डिग्री केल्विन पे कोई भी सेमीकंडक्टर जो मटेरियल होता है, ऑल आर इंट्रिंसिक. ऑल आर इंट्रिंसिक. ठीक है. ऑल आर इंट्रिंसिक. Okay. तो तुम्हारे में क्वेश्चन कैसा आता है कि Ni, हाउ द Ni इज रिलेटेड विद द टेम्परेचर, कि इज इट रिलेटेड विद द, ऐसे आया था क्वेश्चन कि Ni इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर विद व्हाट? T raised to power 3/2, B T raised to power 1 square T raised to power, okay, and 4 T raised to power 1/2. Okay. So this was given to you. So he asked you about the Ni instead of the Ni square. So you can find out that if Ni square is T cube relation, then Ni would be equal to proportional to the T raised to power 3/2. Okay. So this is the simple mathematical manipulation you can do. Okay. So what does it tells you about this dependence mainly? कि जैसे जैसे तुम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हो, okay, थर्मल एनर्जी क्या होती है? थर्मल एनर्जी will increase, right? Thermal energy of electron would increase. These electron would strike
to the covalent bond, जैसे तुम्हारे covalent bond होते हैं, okay, they might break, okay, more number of electrons are released. So more number of electrons are released means more number of the free charge carriers you are getting. So this means that when you are increasing the temperature, okay, so the number of the intrinsic carrier concentration would increase, okay, it will increase. तो देखो अब इससे हमें क्या पता लगा, इस चीज से हमें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो कई बार क्या होगा एग्जाम में, थोड़ा सा लॉजिकल तुम लोग सोचो कि अगर मान लो कि उसने दे दिया कि एट टेम्परेचर 200 डिग्री केल्विन, ठीक है, एन कंसंट्रेशन ये है, एन आई की एन की कंसंट्रेशन ये है और पी की कंसंट्रेशन ये है, तो फाइंड द एन आई स्क्वायर, ओके। या उसने क्या दे दिया कि एन आई की कंसंट्रेशन दे दी, फिर उसने क्या क्वेश्चन पूछा कि एट 300 डिग्री केल्विन, ठीक है। तुम लोग सोचो मटेरियल सेम है, तो ये जो चीजें होंगी ना, एन आई भी चेंज होगा तुम्हारे पास, और ये N1 भी चेंज होगा और P भी चेंज होगा, हमेशा ही याद रखना। सो एट ए सर्टेन टेम्परेचर इफ दिस फार्मूला इज व्हाट, N1 P1 इज इक्वल टू Ni1 स्क्वायर, ओके। एट सेकेंड टेम्परेचर इट वुड बी N2 P2 इंटू, ओके, तो Ni2 स्क्वायर। तो यू नीड टू थिंक लॉजिकली। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करके उसने बताया ना, क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट न्यूमेरिकल में, we did not increase the temperature, we just doped that thing, okay। अगर डोपिंग से करते हो तो that formula is valid at a particular constant value, np is equal to ni square। लेकिन अगर टेम्परेचर से तुम लोग अगर चार्ज कैरियर बढ़ाओगे तो तुम्हारा ni कंसंट्रेशन भी डिफरेंट हो जाएगा, ओके, ni कंसंट्रेशन भी it would be different। now let us more go deeper into the silicon, let us discuss the silicon and the germanium properties, ओके। तो एक बार ये हो जाए, इसके बाद हमारे लिए क्या होगा, इजी हो जाएगा कि पी एन जंक्शन जर्मेनियम, ओके। सो आई विल डिस्कस अबाउट द जर्मेनियम एज वेल एज द सिलिकॉन, ओके। make a straight line, but germanium and the silicon, okay। So you already know that this is its atomic number is what, atomic number क्या होता है जर्मेनियम का, पता है तुमको रूपा? सिलिकॉन का इट इज 14, जर्मेनियम का क्या होता है 32। दोनों के वैलेंस शेल में क्या होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दोनों का वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट, इफ आई एम डिस्कस अबाउट द एटॉमिक वेट, ओके। atomic weight of, because this atomic number and the atomic weight decide most of the property of all the elements, okay। Okay, this is equal to 72.6, I think this will be equal to 28.1, okay। तो ये इसका होता है एटॉमिक वेट। इसके अलावा क्या होता है, इसकी डेंसिटी इज आल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, कि कितना डेंस है कोवेलेंट बॉन्ड्स। डेंसिटी इज जनरली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द ग्राम पर सेंटीमीटर। क्योंकि ये क्यों डिस्कस कर रहा हूं मैं, क्योंकि तुम लोगों को कई बार क्या मिलेगा, तुम लोगों को वो मिलेगा एवोगैड्रो नंबर से मोल इसका मिल जाएगा, क्योंकि ऑल इफ 1 मोल इज गिवन, ऑल आर हैविंग व्हाट, नंबर ऑफ द एटम्स आर सेम, 6.02 into 10 raised to power 3, okay, and this would be around what its density is 3.33, okay। तो मैं इसका डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट होता है, दैट इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। Dielectric constant is also important if you want to use this within the capacitor, right। कैपेसिटर की अगर तुम प्लेट्स में सोचते हो कि इसके अंदर एक तो एयर कैपेसिटर होता है, ओके, एक होता है इसमें अगर हम लोग क्या पुट करते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पुट करते हैं। तो उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाय, तुम लोगों ने देखा होगा ये फार्मूला, राइट। दिस एप्सिलॉन इज नथिंग बट योर परमिटिविटी, राइट, ओके। परमिटिविटी होती है, और E इज इक्वल टू E बाई ER इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारे पास, K होता है ना, दैट इज वी कॉल दिस एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट, ओके। E is equal to E naught into AR, right। So you can discuss about this dielectric constant. This dielectric constant is around I think 16 and 12. Yeah, I'm right, okay। Apart from this, this part is important। इन दोनों का एनर्जी गैप एट 0 केल्विन, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ 0 यहाँ पे,
इसका मतलब क्या है, सबस्क्रिप्ट का 0 केल्विन, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिस्कस करूंगा, so this will be in the electron volt. Okay, so this would be around what, it would be around 0.785, so 0.785, and this would be 1.21. ठीक है, और एनर्जी गैप at 300 degree Kelvin. Okay, at 300 degree Kelvin, this is around 0.72. तो हमने यही डिस्कस किया था कि जर्मेनियम के केस में कितना था, 0.72 था, और ये कितना होता है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो एनर्जी गैप क्या हो रहा है, तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो कि टेम्परेचर के साथ एनर्जी गैप भी तुम्हारे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. ओके, इट इज डिक्रीजिंग. तो एनर्जी गैप का भी कुछ टेम्परेचर के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, दैट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट पार्ट. ओके, so let me go to the next part. So this, in this, this is your germanium and this was your silicon. Okay, so why I'm discussing this, there is very thermal properties are comes from this part. Okay, so Ni means carrier concentration in this at 30 degree Kelvin. Okay, 30 degree Kelvin at 300 degree Kelvin. I think this would be around what, the germanium के केस में होता है 2.5 into 10 raised to power 13. ओके, और इसके केस में अभी डिस्कस किया था 1.5 into 10 raised to power 10. तो ये क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे में कि इंट्रिंसिक जो कैरियर कंसंट्रेशन है किसकी ज्यादा है, जर्मेनियम की या सिलिकॉन की. आईआईटी जैम में नहीं आएगा, बट इट कैन कम इनटू द मोर थ्योरेटिकल टाइप ऑफ पेपर्स लाइक यू आर गिविंग द नेट थ्रू द सीएसआई और द यूजीसी. ओके, और मोबिलिटी जो होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोबिलिटी दोनों के केस में. ओके, और मोबिलिटी की यहाँ पे यूनिट क्या है, दोनों के दोनों 300 डिग्री केल्विन पे, क्योंकि 300 डिग्री केल्विन क्यों कर रहा हूँ, दिस इज योर रूम टेम्परेचर. ओके, क्योंकि ये किसके इक्वल होता है, 27 डिग्री सेल्सियस के इक्वल 300 डिग्री केल्विन. ओके, सो दिस जर्मेनियम में क्या होता है मोबिलिटी, सो दिस इज अराउंड व्हाट 3800, this will be 1800, this will be your 1300, sorry, let me it's more sensitive, so this would be around what 1300 and 500. तो एक बार क्वेश्चन कैसा आया था, क्वेश्चन ये आया था कि मोबिलिटी रेशियो किसका ज्यादा है. ठीक है, तो मोबिलिटी रेशियो अगर तुम लोग म्यू एन बाई म्यू पी करोगे सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, दैट वुड बी अराउंड व्हाट 3000 डिवाइडेड बाय 18. सो इसका रेशियो कितना आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा. अगर तुम लोग सिलिकॉन का करते हो म्यू एन बाई म्यू पी, सो दिस वुड बी अराउंड व्हाट 3 टाइम्स. ओके, म्यू एन बाय म्यू पी. तो इसका क्या मीनिंग है कि जो मोबिलिटी तो चलो हायर है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, if I am discussing about only the silicon, in the silicon itself, the mobility of the electrons is 3 times more than the mobility of holes. तो ये अब तुम लोग क्वेश्चन में सोचते कि हाँ ये मैं तो ये लगा देता जर्मेनियम का ज्यादा, नहीं, क्वेश्चन में ये देखा करो कि रेशियो किसका ज्यादा है, कि एक जर्मेनियम जो स्पेसिमन है उसमें क्या है, रेशियो क्या है, 2:1 का रेशियो है. मतलब कि होल्स की जो वो है मोबिलिटी है, ओके, मतलब पावर है कितनी, वेलोसिटी है, मोबाइल कितने हैं वो लोग, तो वो 2 टाइम्स है. इन द सिलिकॉन इट इज 3 टाइम्स. ओके, इन द सिलिकॉन इट इज 3 टाइम्स. इसके अलावा दिस इज वी विल डिस्कस दिस इन द डिफ्यूजन करंट. ओके, ड्रिफ्ट करंट तो हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था, बिकॉज द करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी ओवर ड्रिफ्ट करंट, बट diffusion is always due to the concentration difference. Okay, so this is 99, this is around 47, this would be 34, and this would be around 30. Okay, इसके अलावा I think that is sufficient for you. Okay, so एक तो इस पे रेशियो बनता है. तो देखो और क्या रह गया इसमें, एनर्जी गैप का मैंने तुम लोगों को नहीं बताया ना. ओके, एनर्जी गैप का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है. तो एनर्जी गैप का क्या होता है इन द सिलिकॉन केस, in the silicon case the energy gap at a certain temperature. Okay, so here temperature you would be putting in the Kelvin, not in the Celsius. Okay, 1.121 into minus, okay. So minus
3.6 into 10 raised to power minus 4 into t। ठीक है, अब एग्जाम में तो तुम लोग ऐसे याद नहीं रख सकते ना, लेकिन बस ये कांस्टेंट, ये कुछ ये टर्म्स जो है ना, जैसे मोबिलिटी ज्यादा है उसकी, तो ये कुछ टर्म्स तुम लोग याद रख सकते हो कि अन्य का टेम्परेचर के साथ कितनी पावर का रिलेशन है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एग्जैक्टली ऐसे इतना तो नहीं पूछेगा कि 3.60 है या इतने टेम्परेचर पे कितना है। ओके, सो 2.23 इंटू 10 रेज टू पावर -4 इंटू टी। ओके, तो ये होता है T इज इन योर always in the degree Kelvin, okay, and this energy gap, ये both are in the electron volt, okay? both are in the electron volt। तो तुम लोग देखो इस फार्मूले में अगर क्या करते हो, अगर इफ यू आर पुटिंग T इक्वल टू 0, ठीक है, T इक्वल टू 0 पुट करोगे, so energy gap at 0 it would be around what 1.21 for the silicon or the 0.785 for the जर्मेनियम, अगर 0 डिग्री केल्विन इस फार्मूले में पुट करते हो तो तुम लोग, ठीक है। लेकिन जब टेम्परेचर तुम लोग क्या करते हो, जो यूजुअल वैल्यू हम लोग याद रखते हैं, दैट इज T इक्वल टू 300 डिग्री केल्विन अगर पुट करोगे तो Eg वुड बी अराउंड व्हाट 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन, ओके, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस एनर्जी गैप इट वुड बी अराउंड व्हाट, दिस वुड बी 0.72, ये याद रखते हैं लोग, है ना, जर्मेनियम और केस में। तो बैंड गैप किसका ज्यादा है, बैंड गैप देखो ये है वैलेंस बैंड और ये है तुम्हारे पास कंडक्शन बैंड, राइट, ओके, सो दिस इज योर बैंड गैप। तो अगर इफ यू सी द बैंड गैप ऑफ द सिलिकॉन इज मच मोर लार्जर देन द जर्मेनियम, ओके, लेकिन जनरली देखो चलो बैंड गैप तो, और इसमें कितनी एनर्जी चाहिए जर्मेनियम में कंडक्टिविटी के लिए, बस 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए तुम लोगों को, बट फिर भी हम लोग जर्मेनियम का ज्यादा यूज क्यों नहीं करते हैं, कोई बता सकता है रीजन, रूपा, anyone, can you tell me why we not use the germanium? मीन्स तुम लोगों को जो भी डिवाइसेस मिलेगा उसमें ज्यादातर सिलिकॉन ही यूज होता है, कैन यू टेल मी व्हाई? यस, कैन यू थिंक अबाउट इट कि क्यों नहीं यूज करते? बिकॉज देखो हर एक जो भी सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसको क्या करना पड़ता है तुम लोगों को, माइनिंग करनी पड़ती है, माइनिंग के बाद ओर से तुम्हें निकालना पड़ता है। तो सिलिकॉन क्या है, दिस इज वेरी अबंडेंट मटेरियल इन द आवर क्रस्ट, ओके, एंड दिस इज वेरी इजीली अवेलेबल, okay, so but germanium it's not easy to mine, okay, so it will be slightly expensive to do that, and it's not abundant in the crust also, okay, because of that we generally prefer the silicon, okay, we generally prefer the silicon। now let us discuss one more last formula in this, okay, electron properties के अंदर, that is your mobility relation, okay? तो इसका तो ग्राफिकल क्वेश्चन आया था एक बारी नेट में, मोबिलिटी, ठीक है, मोबिलिटी। तो अब तक तुमने क्या देखा था मोबिलिटी का केस में, कि मोबिलिटी होती क्या है, मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो पर हमेशा ही याद रखना ये जो रिलेशन होता है दिस इज एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही होता है, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। क्यों ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि जैसे जैसे तुम लोग क्या करते हो, अगर तुम लोगों को थर्मल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पता हो, ओके, इस फार्मूला, तो जैसे जैसे तुम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करोगे काइनेटिक इंक्रीज होगी, तो उसकी मोबिलिटी क्या होगा, मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी तुम्हारी इंक्रीज होगी तो मोबिलिटी भी इंक्रीज होगी, ओके। जस्ट ट्राई टू डू दिस रिलेशन, दैट मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी टेम्परेचर के ऊपर तो स्पेशली डिपेंडेंट होती है। तो जो ये फार्मूला है दिस इज योर फार्मूला फॉर ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ओके, पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब देखो इसका क्या क्या फार्मूला है, दिस इज म्यू इज जनरली it is defined as T raised to power m, okay, for temperature between 100 to 400 degree Kelvin, 400 डिग्री केल्विन, ओके। तो ये m क्या है, इसको मटेरियल कांस्टेंट बोलते हैं हम लोग,
तो m तुम्हारे पास होता है या तो 2.5 होगा या 2.7 होगा, ठीक है। ओके, तो 2.5 होता है इलेक्ट्रॉन के केस में, और ये क्या होता है, ये होता है तुम्हारे पास होल के केस में। और ये पर्टिकुलर जो वैल्यू दी है मैंने टिपिकल वैल्यू है सिलिकॉन के लिए। ओके, तो जर्मेनियम के लिए यही वैल्यू कितनी होती है, 1.66 और 2.33। ओके, तो तुम लोग इसमें भी वेरिएशन दे सकते हो, ठीक है। ओके, होल्स के लिए क्या होगी, तो तुम लोगों को अगर होल्स का चाहिए म्यू एन चाहिए, सो यू नीड टू यूज द व्हाट, टी इंटू एम, और होल के केस में क्या होगा 2.33 तुम लोगों को यूज करना पड़ेगा। ओके, इफ आई एम टेकिंग हियर म्यू पी, और अगर तुम लोग म्यू एन फाइंड आउट कर रहे हो, रिलेशनशिप इज डिफरेंट। ओके, its relationship is what, m would be equal to 1.66. So this is your germanium case. Okay, this is your germanium case. So this is a very important formula, that mobility at the temperature you increase. Okay, temperature for a particular range दिया उसने, ठीक है। ओके, टेम्परेचर। सेकंड क्या होती है, डिपेंडेंस ऑफ द टेम्परेचर। इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का, कैसा भी क्वेश्चन हो, डिपेंडेंस अपॉन ऑन टेम्परेचर। तुम लोगों का ये क्वेश्चन नहीं आ सकता क्या कि देखो कि सर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तुम लोग तो मोबिलिटी डिक्रीज हो रही है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तुम लोगों की क्यों नहीं सोचा तुम लोगों ने। मैं यहाँ पे तो डिस्कस कर रहा था कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो म्यू भी तुम्हारे पास क्या रहेगा, म्यू भी तुम्हारा चेंज होगा। लेकिन देखो हमेशा ये क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो बढ़ती ही बढ़ती है, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का भी रिलेशनशिप होता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशनशिप होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन मोबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज कैसे करती है, क्यों करती है, क्योंकि देखो जैसे जैसे क्या करोगे तुम लोग, ये मान लो कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसकी जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, कोलिजन, मोर कोलिजन विल हैपन। ओके, मोर कोलिजन विल हैपन। सो विद इन दैट टाइम फ्रेम, विद इन दैट मीन फ्री पाथ, तुम देखा था मीन फ्री पाथ क्या था कि एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू कोलिजन, राइट। ओके, तो जैसे जैसे तुम लोग क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, बट ये क्या करेगा, इट विल स्ट्राइक, देयर विल बी मोर कोलिजन। ओके, देयर विल बी मोर कोलिजन। तो ओवरऑल जो हम लोग एवरेज मोबिलिटी देखते हैं, दैट विल डिक्रीज। ओके, दैट विल डिक्रीज। और सेकेंड पॉइंट क्या है, जैसे जैसे तुम लोग क्या करते हो, टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हो ना, ओके, टेम्परेचर व्हेन यू आर इंक्रीजिंग, सो व्हाट वुड हैपन इज दैट, जो ये एटम्स होते हैं इनकी ना वाइब्रेशन इंक्रीज होने लगती है। तो ये एटम्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो है ही हैं, जो ये तुम लोग न्यूक्लियस की बात कर रहे हो, इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर। ओके, इट स्टार्ट डूइंग वाइब्रेशन, बिकॉज ऑफ दिस वाइब्रेशन एंड बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट आल्सो, दिस मोबिलिटी वुड डिक्रीज। ओके, मोबिलिटी वुड डिक्रीज, जो कि क्योंकि हमने एक फार्मूला ऑलरेडी डिफाइन किया था, दिस वाज इक्वल टू, इफ यू रिमेंबर, ई टाउ बाय टाउ, राइट। ओके, ये तुम लोग लास्ट टाइम का एक बार ये डेरिवेशन देख लेना, यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है हमारे यूएक्सडी चैनल पे। ओके, इसके अलावा देखो, देख तो टेम्परेचर का हो गया रिलेशनशिप, इसका क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आता है तुम्हारे पास मोबिलिटी और मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, mobility and electric field. So all small theoretical questions or the MCQs we have discussed. So mobility का क्या relation होता है? It is also is found to be the function of electric field. Function of your electric field. If I am talking about this is electric field E. Okay. तो इसमें क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इफ माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस देन 10⁻³ वोल्ट पर सेंटीमीटर, ओके, इस केस में वो मोबिलिटी जो होती है, दैट इज व्हाट, कांस्टेंट, दैट इज अ कांस्टेंट। जब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, दिस इज बिटवीन 10⁻³ से ग्रेटर और 10⁻⁴ के बीच में होता है, देन जो ये म्यू होता है, इट इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ दिस, स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ओके, और इसके बाद अगर हायर के लिए क्या होता है, हायर के लिए मतलब कि E इज ग्रेटर देन 10⁻⁴ वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके लिए जो मोबिलिटी होती है, मोबिलिटी इज प्योर E,
ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ओके, सो और तुम लोग देखोगे कैरियर स्पीड भी तुम्हारी अप्रोच कर जाती है इस वेलोसिटी पे 10⁻7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, इसके अलावा इसके बाद कोई भी उसमें चेंज नहीं आता है, ये वेलोसिटी है। ओके, तो इसका अगर मैं देखो ग्राफ बनाऊं ना, ग्राफ, इफ आई एम मेकिंग इट्स ग्राफ, ओके, इफ दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस ग्राफ से, ओके, ट्राई टू विजुअलाइज अ थिंग व्हाइल इन द एग्जाम। एग्जाम में सब कुछ तुम लोग याद नहीं रख सकते हो, लेकिन कुछ कुछ ग्राफिकल तुम लोग सोच सकते हो, ठीक है। सो इफ आई एम टेकिंग 0 से लेके 3, 10⁻3, 10⁻4, ओके, सो ऑल दिस क्वांटिटी एंड द वोल्ट पर सेंटीमीटर एंड ग्रेटर देन, ओके, तो मेरे पास क्या आ गई, रेंज आ गई है। सो 0 से लेके 10⁻3, 10⁻3 से 4, ओके, 10⁻4। जब इस रेंज के बीच में 0 से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में, इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ओके, it is constant. Okay, it is what, constant. Let us take this is some constant values there. तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये कहता है कि रूट स्क्वायर मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डेफिनेटली इट विल डिक्रीज। ओके, डेफिनेटली इट विल का क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। ओके, इट विल डिक्रीज लाइक दिस, it will decrease when this reaches at 10⁻4, so it will be almost inversely proportional to it. ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हमारे पास ये क्या कर सकते हो तुम लोग, लाइक दिस वन, ओके, कि वो क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। जैसे जैसे वो क्या है, बढ़ रहा है, मोबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, स्ट्रेट रिलेशन है, लीनियर रिलेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि ओके, तो मेनली जो हमने अब तक डिस्कस किया है ना, वी ऑपरेट विद इन दिस रेंज, 0 से लेके तुम लोगों को 10⁻3, ओके, ये बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी है, दिस इज वेरी हाई क्वांटिटी, 1000 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ओके, हमारे घर में ही जो वो आता है दैट इज अराउंड व्हाट 220 वोल्ट, ठीक है। ओके, so you can understand 1000 volt is, it is very very large quantity. So up to this the mobility will always be constant. Okay, and these all values are generally done by the empirical methods. Okay, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, सारे के सारे क्या होते हैं, मोबिलिटी क्या एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज यूर, आई वांट टू डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट इज स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स। ओके, इसमें एक जिसका क्या क्वेश्चन आया था, स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स डिस्कस करना। तो उससे पहले मेरे को क्या डिस्कस करता हूं मैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट बैंड गैप। ओके, सो इनडायरेक्ट, so I'll not go into the very basics of this indirect and the direct band gap semiconductors, indirect and the direct band gap semiconductors। अब देखो इसका आइडिया क्या है, इसका आइडिया ये है कि देखो जैसे क्या होता है कि ये तुम्हारा वैलेंस बैंड है, ठीक है। ओके, दिस इज योर कंडक्शन बैंड। सो if valence band I am considering this is at energy level E1, this is at energy level E2. Okay, if some electron, it is getting some energy, some covalent bond is broken up, it goes toward the conduction band. Okay, and let us consider that after some time it returns to its original state. Okay, returns to its original state. So इस केस में ये क्या करता है, देखो इसने क्या किया, जब यहाँ पे E1 एनर्जी था तो इसने ये एनर्जी जो गैप है, मान लो ये Eg था, दैट इज इक्वल टू E2 माइनस E1, है ना, E2 माइनस E1 था, तो इसने गेन किया। ओके, आफ्टर सम टाइम इट इज एट हायर एनर्जी, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, इट इज गोइंग टुवर्ड द लोअर एनर्जी स्टेट अगेन, राइट, इट इज गोइंग टुवर्ड द लोअर एनर्जी स्टेट अगेन। सो व्हाट वुड हैपन हियर, सो it would lose some energy. Okay, it would lose some energy and that energy is equal to what, E2 minus E1, है ना, E2 minus E1। और जो ये एनर्जी होती है इट कम्स आउट टू बी इन टर्म्स ऑफ द फोटोन, ठीक है। तो जो ये रिलेशन जो एनर्जी होती है, तो अगर मैं डिस्कस करूं E2 माइनस E1, तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है, h म्यू। ओके, तो इफ दिस इज डेल्टा ऑफ E, so this would be equal to what, this is Planck's constant
mu is your frequency, this would be equal to hc by lambda, right? This would be around hc by lambda. ओके तो ये अब देखो ये जो एनर्जी है ये जो निकल रही है यहाँ पे, दिस इज इन टर्म्स ऑफ सम फोटोन, इट कैन बी फोटोन, ठीक है। और इस फोटोन का जो कलर है दैट इज डिसाइडेड बाय द वेवलेंथ ऑफ दिस वन, ओके। तो इस फार्मूले से हम लोग क्या करते हैं, वेवलेंथ निकाल लेते हैं और इससे फाइंड आउट कर लेते हैं उसका एनर्जी गैप कितना है। एनर्जी गैप से क्या निकालते हैं, वेवलेंथ उसका निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्यों डिस्कस किया मैंने, जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि उनमें इन दिस, ओके, जो ये वैलेंस बैंड होता है, ओके, इसकी शेप कुछ मैं ऐसे बना रहा हूँ, ओके, तो ये ऐसा हो गया, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्टली मैं एट द पॉइंट, बस व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जाम दैट इज हियर, ओके। तो जो ये जो बैंड गैप है, मान लो ये वैलेंस बैंड है तुम्हारे पास और ये क्या है तुम्हारे पास, कंडक्शन बैंड है, ओके। तो ये क्या है तुम्हारे पास, दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज योर वैलेंस बैंड, ओके। इफ दे आर इन स्ट्रेट डायरेक्शन, ओके, स्ट्रेट डायरेक्शन है, यहां से सीधा जाएगा ये, तो इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट बैंड गैप, ओके, डायरेक्ट बैंड गैप। और इसमें क्या होता है कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन सीधा ना जाके इट विल टेक सम कॉन्टोर, ओके। तो ये यहाँ पे क्या होगा कि कंडक्शन बैंड इसका थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा दूर है, मतलब कि डिस्टेंस, क्योंकि ये तुम लोग जो ग्राफ बनाते हो, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज एनर्जी गैप वर्सेस डिस्टेंस, राइट, ओके। तो ये तुम्हारा वैलेंस बैंड होता है, दिस इज, लेट अस कंसीडर दिस इज योर कंडक्शन बैंड, ओके। तो फ्री लेने के लिए क्या कर रहा है, इट इज टेकिंग सम डिटोर, ओके, इट इज नॉट गोइंग स्ट्रेट टुवर्ड द कंडक्शन बैंड। तो इसमें जो पाथ होता है दैट पाथ इज वेरी स्ट्रेट, इसमें ये पाथ क्या होता है, दिस पाथ इज वेरी बेंड, ओके। तो यू नीड टू टेक द डिटोर। अब देखो तुम लोग बस इसको ये समझो कि अगर देख मैं सीधा जा रहा हूं कोई भी चीज लेने के लिए, ठीक है, तो मैं जाऊंगा और वापस आऊंगा, ठीक है, तो मेरी जो टोटल एनर्जी होगी दैट वुड बी इक्वल टू E2 माइनस E1, ओके। लेट अस कंसीडर दिस इज E2 एंड दिस पॉइंट इज E1, सो दिस वुड बी अराउंड व्हाट, h ऑफ m। पर अगर मैं क्या करता हूं कि अगर मैं सीधा ना जाके कुछ गली वलियों से कुछ जाके मैं कहीं और जा रहा हूं, तो मेरी कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। तो वो जो एनर्जी जो लॉस होती है यहाँ पे, उसको कहते हैं कि यहाँ पे जो एनर्जी निकलेगी अगर सीधा जा रहा हूं तो दैट विल बी इन द टर्म्स ऑफ द फोटोन। बट अगर मैं सीधा नहीं जाके कुछ या तो टकरा रहा हूं या सम कोलिजन इज टेकिंग प्लेस, दैट एनर्जी इज वेस्टेड हियर, एनर्जी इज वेस्टेड इन टर्म्स ऑफ हीट, ओके। तो इन टर्म्स ऑफ हीट, तो जो इनडायरेक्ट बैंड गैप जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उनमें जब इलेक्ट्रॉन वापस आता है तो कुछ भी नहीं निकलता, फोटोन नहीं निकलेगा उनमें से, ठीक है, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है दैट इज वेस्टेड इन हीट, ओके। बट जो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स होते हैं, दे विल गो स्ट्रेट, they will come back again, okay, they will not lose their energy, so this energy will always be proportional to your h into mu, okay, h into mu। तो डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर्स में जनरली क्या आते हैं, गैलियम आर्सेनाइड आ गया तुम्हारे पास, ठीक है, ओके। इसमें ये गैलियम आर्सेनाइड है क्या, तो तुम लोगों ने देखा था, देखो ये बीच में क्या था तुम्हारे पास टेबल में देखा हो तो दिस वाज योर सिलिकॉन, दिस इज जर्मेनियम। यहाँ पे अगर तुमने बोरोन, सिलिकॉन, फास्फोरस, राइट, यहाँ पे देखा होगा गैलियम और आर्सेनिक, ओके। तो जनरली ये क्या करते हैं हम लोग, दिस एंड दिस, ओके, वी लीव दिस पार्ट क्योंकि दिस इज योर इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। तो इनको ना लेके हम लोग अगर इन दोनों को कंबाइन करते हैं ना, या तो तुम लोगों को मिलेगा गैलियम फॉस्फाइड या मिलेगा गैलियम आर्सेनाइड, ओके, आर्सेनाइड मिलेगा। तो ये जो मटेरियल होते हैं ना, इनका यूज करते हैं हम लोग एलईडीज में, ओके। डिफरेंट टाइप की एलईडी, अगर तुम लोगों ने देखा हो रेड एलईडी है या ग्रीन एलईडी है, ओके, तो उसमें इस टाइप का मटेरियल यूज होता है। और आजकल तो इट इज आल्सो यूज्ड इन द AECA रडार, ओके, एंड दैट इज योर गैलियम नाइट्राइड, तो इस पे आजकल काम चल रहा है, ओके। दिस इज व्हाट एक्टिवली इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार, ओके। पहले मैकेनिकल रडार हुआ करते थे, अब जो प्लेन्स में होते हैं दैट इज योर स्टीयर्ड बीम, ओके। इसके बारे में, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ दिस, you're interested you can go look at it, okay। तो उसमें गैलियम नाइट्राइड यूज होता है। तो ये क्या हो गया तुम्हारे पास, दिस इज योर डायरेक्ट बैंड गैप एंड दिस इज योर इनडायरेक्ट। तो तुम्हारे एग्जाम पे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन क्या आता है कि डायरेक्ट बैंड गैप कौन सा, इनडायरेक्ट बैंड गैप कौन सा है, ठीक है। अगर डायरेक्ट बैंड गैप है
तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी। तो तुम लोगों को ये दे देगा E2 माइनस E1, मतलब कि एनर्जी गैप की वैल्यू दे देगा, और तुम लोगों को क्या दे देगा, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू तुम लोगों को पता ही है, दैट वुड बी, और सी की वैल्यू पता है, वेलोसिटी ऑफ द साउंड, तो लैम्डा तुम लोगों को निकालना है। ओके, तो तुम लोगों को पता होगा वीक ब्योर, राइट। ओके, सो दिस इज योर रेड हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ and the violet has the lowest wavelength. Okay, that's why we use the red in the red light. Okay, क्योंकि तुम लोग इसको दूर से दूर तक देख सकते हो, because it is having the highest wavelength. Okay, तो ये highest wavelength इसकी होती है। तो ऐसे लैम्डा मिल गई तो तुम लोगों को क्या मिल जाएगा, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ, वो जो एलईडी, वो जो मटेरियल है किस वेवलेंथ में एमिट करेगा लाइट। ओके, इट इज अराउंड 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, दिस इज योर विजिबल बैंड। ओके, दिस इज योर विजिबल बैंड। सो आई थिंक द टाइम इज ऑलरेडी 8:10, सो आई विल स्टॉप हियर। नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, डिफ्यूजन और पीएन जंक्शन डिस्कस करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। Okay, so I'll stop here. Yes, sir. So I'll stop here. Yeah, maybe if Rupa has some questions, maybe. Ha, Rupa, if you are having any question, you can ask. Rupa? Sir, in the bolo. expression of mobility, it is written that mu directly inversely proportional to Tm. Sir, what is M here? M is your material constant. Okay. मटेरियल अगर जर्मेनियम का है तो M क्या हो सकता है, अगर तुम लोगों को होल की मोबिलिटी भी चाहिए, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन वंस अगेन। सो दिस वाज M is, so M was equal to C. This M was material constant. Okay, this is 2.5, अगर इलेक्ट्रॉन की चाहिए तो 2.5 यूज कर लो, होल्स की मोबिलिटी चाहिए तो यू कैन यूज द 2.7। ओके, ओके सर। हाँ ठीक है। तो ये क्या होती है, एम्पिरिकल वैल्यू आती है। मैक्सिमम जो तुम लोग देखोगे ना, सारे के सारे जो फार्मूलेज है, these are empirical, एक्सपेरिमेंट करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं, देन वी फिट द डाटा इन द फार्मूला। ओके, ऐसा नहीं कि इसमें डेरिवेशन कुछ कर। ओके ओके मुकेश सर, That's a nice presentation. Let me stop the recording now. yes।